हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ज्ञान गार्डन में जो गेस्ट आए हुए हैं वह एक दरअसल पेट है, एक डॉग है। और आज हम इस डॉग के संदर्भ में ही कुछ अंग्रेजी सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि यह जो डॉग है यह फ्रेंडली ब्रीड है, यह पीटबुल नहीं है, यह आपको काटेगा नहीं। क्लियर? इसलिए बेधड़क होकर ज्ञान गार्डन में आप घूमिए और डॉग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स का आज आप आनंद लीजिए। आजकल पिछले कुछ दिनों से बहुत सैड इंसिडेंट्स हुए हैं, ख़ास करके कुछ जो फेरोसस ब्रीड्स हैं जैसे पीटबुल या कुछ और दूसरे ब्रीड्स हैं, उनके द्वारा अटैक किया गया है और कहीं कैजुअलिटी भी हुई है और एक बच्चे को तो 100 से ऊपर टाके लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम पहले ये देखें कि क्या वास्तव में यह जो आप फेरोसस डॉग पाल रहे हैं, ये जो आप हंटिंग डॉग्स पाल रहे हैं, इज़ इट प्रॉपर? इज़ इट प्रॉपर ऑन योर पार्ट? इज़ इट प्रॉपर ऑन द पार्ट ऑफ द पेट लवर्स टू डोमेस्टिकेट or to have, ferocious breeds as pets? In my opinion, not at all. When a dog bites a person, it doesn't make any news. But when a human being bites a dog, it makes news. But you see the gravity of the situation. When dogs are biting people, it is making news because these bites are not normal. Okay, some people have lost their lives, and just a child of 11 years has undergone a major surgery, and he has been given more than 100 stitches. So my clarion call from this Gyan garden is that no problem with having pets, but please see to it that you have no right to mess up with the freedom of others. Okay? Suppose you are sitting in a garden and your pet is there. Okay? You have bridled your pet, but any time it may get unleashed. And any time, it may harm the people sitting nearby. So you can imagine the psychological fear, okay, people remain with as long as you are sitting in the park, okay, or you are carrying your dog in a lift. If your dog is ferocious, if it is friendly like, pugs, like golden retriever and poodles, no problem. Okay? So, first of all, you have to learn that the very word pet is used for the animal which evokes love. If your pet evokes fear, this is not a pet. Okay? If you are sitting, with so many scorpions and someone is sitting just beside you, scorpions are not your pets. Okay? So, if at all you want to domesticate something, some breed, see to it that invariably the breed is, not harmful to others, not ferocious, not angry. Okay? Now, let us learn some words related to
dogs. First see, dog days of summer. Dog days of summer are over. Okay, Durga Puja, I mean Dasahara, is approaching. So dog days of summer are over. Means gone are the sweltering days. जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, उमस होता है, तो वैसे हम कहते हैं कि उन दिनों को हम कहते हैं, उन क्षणों को हम कहते हैं डॉग डेज ऑफ समर, काफ़ी गर्मी का दिन. ओके, नाउ इफ यू हैव ए पेट, ओके, in some of the states, government has stipulated that you have to get your pets registered. Okay, and if you go out with your pet, if you are carrying your pet in a lift, you have to put a muzzle, you have to use a muzzle. Okay, muzzle एक डिवाइस है जो कि आप उसके मुंह में, जिसको लोकल भाषा में आप जाब कह सकते हैं, ताकि वो दूसरे पर अटैक नहीं करे. नाउ सम पेट लवर्स आर अपोज टू दिस आइडिया बिकॉज द मजल may stifle the breed. So that's another thing. As long as your pet doesn't evoke any fear, it evokes love. Okay, people are ready to play with it, no problem. Now tail wagging the dog. Tail wagging the dog. आपने देखा होगा कुत्ता जो है वो हमेशा अपने पूंछ को हिलाता है, लेकिन आपने यह भी हो सकता है सुना हो, देखा तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा देखने में नहीं आता है, ये एक फिगरेटिव यूज़ है कि अगर पूंछ कुत्ते को हिलाने लगे, इफ़ द टेल इज़ वैगिंग द डॉग, ये किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं. आपने कभी देखा होगा कि किसी बड़े आदमी के पास, बड़ी संस्था के पास ऐसी कोई मजबूरी आ जाती है कि उसे छोटे अपने विंग का भी, अपने छोटे ऑर्गेनाइजेशन का भी उस संस्था के अंदर, और कुछ वैसे लोगों का भी जो नॉन डिस्क्रिप्ट हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बात को भी मानना पड़ता है, ठीक है, जिनका कुछ आपका सेल्फिश मोटिव हो सकता है. तो वैसी परिस्थिति में कहते हैं जब एक बड़ी संस्था के अंदर कोई छोटी संस्था एक बड़े आदमी को, उसी के अधीन के कुछ उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो डिक्टेट करने लगें, ऐसे करिए, ओके, और वो आदमी हेल्पलेस हो, उसको बात मानना पड़ जाए, तो उस परिस्थिति को कहते हैं कि टेल इज वैगिंग द डॉग. ओके, नाउ अ डेज in the political scenario you see how the tail is wagging the dog. पूंछ कैसे कुत्ते को हिलाने लगा है. Clear? Now the third expression, a dog with two tails. Earlier also I have mentioned, okay, if you are extremely elated, if you are on cloud nine, if you are happy, okay, extremely happy, you can express this a state of your mind in so many ways. Okay, I am on cloud nine, I am extremely delighted, I am cheerful, I am happy, etc etc, I am ecstatic, मैं काफ़ी खुश हूँ. Okay, and this one more expression for that situation, a dog with two tails. अगर एक कुत्ता के पास दो पूँछ हो और वो दोनों हिलाने लगे,
फिर यह एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो ये माना जाएगा कि कुत्ता बहुत खुश है। तो अगर कोई आदमी काफ़ी खुश हो तो आप कह सकते हैं कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स अप, क्या बात है, यू आर हैप्पी लाइक ए डॉग विथ 2 टेल्स। ठीक है, हैव यू गॉट ए रेज, क्या सैलरी अभी बढ़ी है, और हैव यू गॉट प्रमोशन, ओके, और समथिंग, ओके, कुछ अप्रत्याशित हुआ है, यू आर सो हैप्पी। सो ए डॉग विथ 2 टेल्स का मतलब होता है कि काफ़ी खुश आदमी। ठीक है। नाउ टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है आपको जब यह कहना हो कि यह चीज़, यह देश, यह समाज, देश की इकोनॉमी, या किसी और देश की बात करें जैसे यूक्रेन, ठीक है, या वार के कारण जैसे आपने यूक्रेन को देखा, या इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, कुछ भी अगर कोई काफ़ी उसमें डिके हो रहा है, ठीक है, उसमें क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं टू गो टू द डॉग्स। तो बहुत सारे लोग जो अभी who are detractors of this government, they say, okay, the country is going to the dogs. It is half truth. It is, ये सही नहीं है, ठीक है, बट लोग कहते हैं इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स। ठीक है, मतलब ये चीज़ धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो गोइंग टू द डॉग्स का मतलब हुआ कि कोई चीज़ सब बर्बाद हो रहा हो, ठीक है, और वो अपने अंतिम स्थिति की ओर जा रहा हो। जैसे ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड वार, नो, इकोनॉमी ऑफ the warring countries, both Russia and America are going to the dogs. Clear? Now, dog tired. आपने दिन भर आज काफ़ी परिश्रम किया, ठीक है, और आज आप अब बहुत थक गए हैं इस समय, ठीक है, इतने थक गए हैं कि अब आगे आपसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अब आप अभी आराम करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, oh, at this moment, okay, I am badly exhausted. I am dog tired. I am dog tired means I am badly exhausted. So dog tired का मतलब होता है badly exhausted, बुरी तरह से थका हुआ, हरा थका हुआ। ठीक है, क्लियर? हरा हरा थका हुआ, डॉग टायर्ड, हरा थका हुआ, जिसे विश्राम की सख्त ज़रूरत हो। और उसी तरह से एक शब्द है, एक एक्सप्रेशन है, डॉग चीप। डॉग चीप का इस्तेमाल हम करते हैं कि जैसे कोई चीज़ जब मार्केट में बहुत सस्ता हो तो आप कह सकते हैं, जैसे विंटर सीज़न में, यू नो, कुकुम्बर इज़ डॉग चीप इन विंटर सीज़न। सिमिलरली इन समर सीज़न मेलॉन्स आर डॉग चीप। ओके, मतलब मार्केट में ये चीज़ अभी बहुत सस्ता है, औने पौने दाम पर भी इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो डॉग चीप। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन आवर कंट्री, एक जस्ट सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ये बहुत सारी जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो थिंग्स हैं, दे आर कॉस्टली, okay, but human life, you know, education is so, you know, such a costly affair in our country. Similarly, you know, health care also is not affordable, okay, for many, but when it comes to life, it is dog cheap. मतलब सब कुछ महंगा है लेकिन आदमी का जीवन काफ़ी सस्ता है। सो डॉग चिप मीन्स काफ़ी सस्ता। ठीक है, और सीक एज अ डॉग, अगर लगता हो कि
आज हम थोड़ा बीमार हैं तो कह सकते हैं कि आई एम सीक एज अ डॉग। डॉग जब बीमार होता है तो काफ़ी सुस्त हो जाता है, तो आई एम सीक एज अ डॉग। इस तरह से डॉग से रिलेटेड हमारे कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस थे जो अभी हमने देखा। और फिर मेरा एक क्लेरियन कॉल होगा। इट इज़ माई क्लेरियन कॉल, इट इज़ अ क्लेरियन कॉल फ्रॉम दिस ज्ञान गार्डन दैट ओके, looking at the rising incidents of dog bites, government should put a blanket ban on domestication of ferocious dog breeds, okay, especially by civilians, okay, in armed forces, in police. Those dogs can be kept, but civilians should not be allowed to keep pit bulls and other such breeds of dogs. So अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप इसे प्लीज़ अपना प्यार देंगे, अपना लाइक देंगे, अपना फीडबैक देंगे, और ज्ञान गार्डन को प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।